So now we will discuss about the RLC layer. So first of all, we will see what are the functionality of RLC layer, and then those functionality we will discuss in different modes. So RLC layer, the main functionality performed by the RLC layer is the first one, buffer maintenance. Means whatever the data will come from the higher layer, it will take in the buffer, so it will maintain the buffer. Then next, adding RLC header, then segmentation if required, or concatenation. So these are the main tasks that your RLC will perform. It will maintain the buffer, adding your RLC header, it will perform the segmentation, it will perform the concatenation. Some few more tasks will come, but that will come in the different mode, so that we will discuss during that time only. So whatever the functionality RLC layer has to perform, for that RLC layer has three operating modes. RLC layer mainly operating in three modes. In these three modes, they are performing the different types of tasks, or for different types of services, different types of signaling. RLC layer will be having the three modes to handle the different types of signaling or traffic. RLC layer is operating in three different modes to handle different types of signaling or traffic. So what are those three different types of mode? और प्लीज़ आप लोग रिवीजन करते चलो, बिकॉज अब ऑलमोस्ट आपका LT लास्ट पे है. अभी RLC 4 क्लास के आसपास होगा, देन PTCP मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 क्लास. PTC में ज़्यादा कुछ फंक्शनलिटी है नहीं. देन 1 क्लास CSFB एंड 1 क्लास हैंडओवर. फिर आपका LT कंप्लीट, फिर VLT स्टार्ट होंगे. सो प्लीज़ आप रिवीजन कर लो क्विकली. So RLC is operating at three modes. What are those modes? First one is the TM, that is transparent mode. EUM, unacknowledged mode. AM, acknowledged mode. So these are three operating modes: TM, EUM, AM. As I said in the beginning only, three types of mode. क्यों चाहिए? Why we need these three types of mode? So handle the different types of signaling and the different types of the traffic. मैं भी just elaborate करूँगा what is the different types of signaling or traffic. But for that we have these three modes. So if we are coming to the first mode, in the transparent mode, as name is suggesting, it's a transparent. Means if RLC layer is operating in TM mode, so if RLC is operating in TM mode, transparent means whatever the PDUs will come from higher layer, now they will have a different SDU. So whatever the information will come from the higher layer to the RLC TM mode, is a transparent means that time RLC layer is not performing any task except only buffer maintenance.
Means there are so many tasks that RLC will perform, but in TM mode, RLC is performing only the buffer maintenance. No adding RLC header, no segmentation, no concatenation. I'll tell you how. So why? Because it's a transparent, means whatever the information will come from higher layer, as it is, it will bypass to the lower layer, as it is. So if it is not segmenting, not concatenating, so if any packet will not segmented, then why sequence number will be added? सेगमेंट होगा तब तो सीक्वेंस नंबर ऐड करोगे हर पैकेट में ना. सेगमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, कॉन्केटेनेशन ही नहीं हो रहा है, सो हेडर भी ऐड नहीं होगा बिकॉज बाईपास हो गया इन्फॉर्मेशन एज इट इज. ओनली वॉट एवर डेटा विल कम दे विल स्टोर इन द बफर, दैट्स ऑल. सो मेंटेन द बफर पार्ट. अदर देन दैट RLC TM is not performing any task. So RLC TM is suitable only for signaling message. Please listen. RLC TM bypass higher layer information to the lower layer without adding, removing the header, no segmentation. Saddam, concatenation will be performed. ऑफिस गए थे सर? नहीं गए थे. म्यूट कर लो. संजय मिश्रा को पहचानते हो ना ऑफिस में? सर किसको? संजय मिश्रा जो बैठा था लड़का ऑफिस में कॉर्नर साइड में. सर नहीं सर, मालूम नहीं सर. ठीक है, आज जाकर ऑफिस में उससे आ जाना, उससे क्वेश्चन का कुछ सेट ले. वो उसका जॉब लग गया, उससे जाकर कुछ क्वेश्चन का सेट ले लेना, क्या क्वेश्चन सेट. ओके ठीक है, नाम उसका संजय मिश्रा. वो आएगा क्योंकि कल फिर घर निकल जाएगा, जॉब हो गई तो घर निकल जाएगा. ओके सर. कल ही फ़ोन किया था कि सर मैं घर निकलूँगा. चलो. सो नो सेगमेंटेशन कॉन्फिगरेशन विल बी परफॉर्म्ड. इंफॉर्मेशन बाईपास कर देगा एज इट इज़ टू द लेयर, लोअर लेयर, विदाउट कोई हेडर ऐड किए हुए. अब TM मोड यूज कब होगा? बिकॉज बहुत टाइम तुम्हें ऐसा पूछेगा, कोई पर्टिकुलर मैसेज दे देगा, दे विल गिव सम लेयर 3 मैसेज. लेयर 3 मीन्स RRC लेयर का मैसेज, जो ठीक है मैसेज नेम से RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट बोलता ये कि जब ये मैसेज RRC लेयर से आएगा तो बताओ उस टाइम RLC कौन सा मोड में काम करेगा. सो देयर आर सो मेनी मैसेजेस कि हम लोग सारे मैसेज के लिए याद करते रहेंगे. सो उसका कॉन्सेप्ट है सिंपल. सो नाउ कमिंग टू दैट, RLC TM मीन्स RLC ट्रांसपेरेंट मोड. जब RLC तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मोड में है, सो दैट टाइम नो ट्रैफिक विल बी ट्रांसमिटेड. RLC TM ट्रैफिक नहीं कैरी करेगा, ओनली सिग्नलिंग. RLC TM इज कैरिंग only those signaling which does not require security or protection. सो वो कौन कौन से मैसेज हैं जिसको सिक्योरिटी नहीं रिक्वायर होता है? दैट इज योर बिना मोबाइल इन आइडल मोड, CCCH मैसेज, BCCH मैसेज और PCCH मैसेज. ये मैसेज को सिक्योरिटी नहीं चाहिए होता है इन आइडल मोड.
सो दिस मैसेज सिक्योरिटीज नहीं चाहिए. सो TM मोड कैरिंग ओनली दोज सिग्नलिंग means indirectly you can say कि RLC TM is carrying only CCCH, BCCH और PCCH RRC मैसेज. सिर्फ यही RRC मैसेज RLC TM में ट्रांसमिट हो सकते हैं. So indirectly we can say RLC TM is carrying CCCH, BCCH and PCCH RRC messages. Now it means the question what now I asked, okay, when RRC connection request will transmit, what would be the RLC mode? See your RRC layer, suppose transmit, see RRC connection request message. That time what would be the mode of RLC there? अभी AM UM का मैं डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हूँ, but for time your answer you get in TM only. Why? Because RRC connection request message transmitting on CCCH channel. तो ये CCCH मैसेज है, तो टू कैरी द CCCH मैसेज RLC will have to operate in TM. पेजिंग पूछा TM, MIB बोलेगा TM, SIB बोला TM, but if they said RRC connection setup complete, so RRC connection setup complete, not CCCH message, a DCCH message. So that will see that we use in another mode. But for time you understand कि कोई भी मैसेज है CCCH, BCCH, PCCH वो RLC TM मोड में ही जाएगा. राहुल क्या बोलते हो? हाँ सर सही. तो RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट किसमें जाएगा? एक मैसेज है RRC कनेक्शन री एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट, वो TM में जाएगा या नहीं जाएगा? पेज टर्न करो, देखो कौन सा चैनल पे जाता है. सही क्या करो, जाएगा ठीक है. टीम है. पेज टर्न करके मिल गया आंसर में. हाँ TM, बिकॉज RRC connection re-establishment also transmitting on CCCH, so it will go in the TM mode. ये क्वेश्चन पूछता है तुम्हें, कोई पार्टिकुलर मैसेज रहेगा, बोलेगा व्हाट विल बी द RLC ऑपरेटिंग मोड. लोगों को लगता है कि आप सारे मैसेज का ना मोड याद रखो, जरूरत नहीं है. आप चैनल का नाम याद रखो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिकली. सो हियर इफ यू सी in RLC TM, what I said, it will only perform the buffer maintenance task, your RLC video will be transmitted. It is transmitting on which channel? CCCH or BCCH और PCCH. इसमें से कोई भी तीनों चैनल पे RLC अपना वीडियो देख सकता है. सेम वे अगेन द रिसीवर, सेम लॉजिकल चैनल CCCH, BCCH and PCCH will receive to the RLC receiver. See RLC transmitter, this is RLC receiver. Now coming back to the UM and AM mode. उसके पहले यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान दो RLC TM में. एक बार और एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. अपना दोस्त अब्दुल्ला है कि नहीं? कहाँ है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला पाइथन क्लास अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? राहुल पाइथन अटेंड करेगा, वो भी नहीं अटेंड कर रहा.
आइडिया सर जी। हाँ, क्वेश्चन क्या है राहुल, आप ध्यान सुनो। राहुल अनम्यूट कर लो। हाँ सर बोलिए। तो क्वेश्चन क्या था कि अब आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज है, दैट इज अ वेरी लार्ज साइज। जो आरआरसी मैसेज होता है उसके साइज बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 ऑक्टेट 12 ऑक्टेट, ऐसे बहुत लेंथी साइज के मैसेज होते हैं। तो वो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट जो मैसेज है वो टोटल कितने पीडीयू में जाएगा सेगमेंट होकर के, कुछ गेस कर सकते हो? जनरली उसकी साइज जो है तुम्हारा 6 ऑक्टेट है, तो कितने पीडीयू में वो सेगमेंट होकर के जाएगा? CPU और रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि चलो हाँ आरआरसी कनेक्शन ये एस2 या पीडीयू आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट का ही है? हाउ दे विल अंडरस्टैंड? मैं इंटरव्यू में ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा जहाँ पे कॉपी पूरा खोल लोगे फिर भी एक दिमाग काम नहीं करेगा तो कॉपी काम नहीं करेगा। पीडीओ में जाएगा। कल मैच देखे थे कंफर्म राहुल? आंसर। राहुल हाँ कल मैच देखे थे। देख हाँ सर देखे थे। कैसा लगा था? बढ़िया मैच था सर। देखते देखते कितना बोतल पिए थे? देख के क्या किए थे? देखते देखते कितना बोतल पिए थे? ऑफिस में देख रहे थे सर। तो ऑफिस में बोतल अलाउड नहीं है, यूके में तो अलाउड रहता है ऑफिस में। नहीं सर नहीं। हाँ यूके में अलाउड है तो। यूके नहीं सर, हमारा तो पुणे में ऑफिस है। मैच तो न्यूजीलैंड में चल रहा था ना, ऑफिस में बोलते हैं सर कि मैच तो बाहर का है ना। लेकिन सर देख तो इंडिया में रहते। चलो ठीक है, मत पीना हो गया। हाँ, आंसर समझ में आया कुछ? थोड़ा टाइम 1 मिनट दीजिए सर, सोच। हाँ, बोलो, सोचो ना आराम से, अब तुम लोग का सोचने का टाइम आ गया। ये तो क्या है, तुम लोग तो फटाफट कोर्स तो खत्म करवा दिए लेकिन रिविजन वाला पार्ट नहीं किए। मोहित क्या बोलते हो? कल्पेश, यस सर। कल्पेश मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए, यस। कर सकते हो? हाँ जी सर। मुझे सोमनाथ घुमा दो यार। तुम सुनते हैं तुम गुजरात का हो, या यू फ्रॉम गुजरात राइट? यस। तो सोमनाथ तो मुझे घुमा दो एक बार। हाँ तो सर घुमा देता हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ वैसे ही भी गुजरात पे ही। मतलब सोमनाथ यस। सोमनाथ सोमनाथ जा रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैं सूरत जा रहा हूँ, गुजरात। मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, सूरत से कितना दूर है सोमनाथ? सूरत से बंदा 400 किलोमीटर्स। बहुत बहुत दूर है। वहाँ से दूर है वो, आपको सौराष्ट्र में जाना पड़ेगा। बाय रोड कैसा है हैदराबाद से जाने के लिए? हैदराबाद से आपको पहले सर अहमदाबाद आना पड़ेगा। रोड अच्छे है ना? हाँ रोड अच्छे है सर। ठीक। सुनते हैं ट्रैफिक पुलिस वाला चालान खूब काटता है। नहीं वहाँ पे नहीं काटेगा सर, वो हाईवे पे चले जाए तो नहीं काटेगा, वो सौराष्ट्र में ऐसे नहीं काटते। ठीक है, काटा तो मैं तुम्हारा नाम बोल दूंगा, और फिर भी काटा तो मैं तुम्हें फिर मैं सुन लूंगा। अरे सर मेरे को कॉल कर लेना कहीं भी ठीक, काटे तो। चलो ठीक। तो तुम आ जाओ हैदराबाद, तुमको साथ में लेके चलते हैं। मैं सर आ जाऊँगा, लेकिन अभी मैं घर पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जॉब छोड़ दिया, अभी लीव कर दिया, रिजाइन डाल दिया आज से। हाँ तो आ जाओ ना, मैं तुमको छोड़ दूंगा घर में, रास्ते में सूरत में छोड़ दूंगा। फिर भी देखते हैं, अभी मैंने टिकट बुक करवा लिया सर वहाँ से फ्लाइट की। चलो ठीक है, अच्छा। हाँ। तो चलो सब, तब मेरा तुम कोई भी बात नहीं मान रहे तो क्वेश्चन का आंसर दे दो। यदि तुम बोलते कि ठीक से मैं आता हूँ तो मैं क्वेश्चन पूछता भी नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा, ध्यान है ना? यस सर, सीट्स वॉटेड के कितना पीडीयू हाँ, जाएगा। ये आरआरसी का सर रिक्वेस्ट मैसेज जो है वो 6 ऑक्टेट साइज का है, उसको कितने पीडीयू में सेगमेंट होगा, और आरएलसी रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा पीडीयू में आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट है? मोहित, यस मोहित सर। को नहीं, मोहित नहीं क्या? सर हूँ सर, हेलो। हाँ बोलो ना, मैं हूँ ना सर। हाँ आंसर दो। मेरे पास अच्छा रूट है, मैं सबका निकालता हूँ हिस्ट्री, तब घूम के आता हूँ पूरा इंडिया। थॉमस, यूर फ्रॉम केरला करेक्ट? Yes, sir. चलो तुम मुझे केरला घुमा देना। No problem, sir. When you will in the Kerala, you will tell me. Last year No. I went during raining season. I prefer to go. Rainy season. Remember? Remember? Last time when in the Munnar, na,
Hill one station will be difficult. overbridge, Munnar will be difficult, sir. one overbridge collapsed, na? That time you don't believe I was in Kerala only. Oh, you. I was in Munnar. That will be rainy season is bit difficult, sir, to go to this hill But station. I prefer driving in the rainy season. I like the raining weather driving in the forest area, na? So that time I went from here to Bangalore. Bangalore to actually the Ooty road was closed. Yes, So yes. I went to the Chikmagalur. Okay. So Chikmagalur, you know, almost 7 to 8 hours. I going to only the coffee estate. Only coffee estate. Some Yes. Google, all the road was closed, na? So Google is taking some from village. I'm going through the village only. Then I reached to the Ooty. From Ooty to Munnar. That is much lengthy route you took, no? That is much lengthy. And Munnar to, you know, actually I was not, I don't wanted to go to Kerala. I'm telling you the situations what happened when I went to Chikmagalur to I put the road Ooty, no? So while going to Ooty, I don't know which route it's taking. It was taking somewhere. I see that's very scenery places, too much scenery. Suddenly I'm seeing they are welcoming the forest area Wayanad, and that time I seen the Wayanad was very much dangerous. Flood was there in Wayanad, na? Yes. Kids in with me in my car. I was surprised. Oh my God, how I came Wayanad? And through the villages I'm going on, na? Suddenly I see the welcome to Wayanad forest area. Then I understood I came in Kerala. I don't wanted to go Kerala. I went to Chikmagalur to Ooty, but I don't know to which route their Google is taking. Suddenly I seen, but that's too much scenery place. Then I get mad. So अब Kerala भी try करते हैं. Wayanad जब आ गए, because that time Wayanad was more dangerous. Yes. So then I said, okay, So then from there I went to the Munnar to Guruvayur temple. Guruvayur temple. Yes. Guruvayur temple, then Cochin. Keep going on. But that time Kerala is looking awesome. Whole road having so many waterfalls. Yes. So that's I prefer in the raining season. सर नागपुर भी आइए कभी. कौन बोला? मोहित. नागपुर में घूमने का है क्या? सर वो है ना. रोड पे ट्रैफिक जाम, मेट्रो बंद है, रोड पे डाइवर्जन है. सर कुछ जगह पे ही है. मुझे पता है, मुझे चाहिए जगह थोड़ा सा पूरा ग्रीनरी, बादलों से भरा. मैं इसलिए बारिश में प्रेफर करता हूँ. पूरा क्लाउड से भरा हुआ एकदम ग्रीनरी, रिफ्रेश हो सा. मुझे सिटी टाइप मुझे घूमने में. मैं आज तक हैदराबाद, बिलीव नहीं, 10 साल में हैदराबाद नहीं घुमा आज तक. मुझे कोई आता है ना, मुझे पापा जब आते थे हैदराबाद घुमा दो, बोले थे चार मीनार है यहाँ पे, रामोजी फिल्म सिटी है, और कुछ जगह वो लेकर बुक लेके आए थे बिहार से. मैं बोला कि मैं आज तक खुद ही नहीं घुमा हूँ. मुझे सिटी में उतना मजा नहीं आता. बट केरला ऐसे 2 years बिफोर में. सर नागपुर में ताड़ोबा ये है ना टाइगर. मैं एक बार पता है रेनिंग सीजन में ही पूरा का पूरा कर्नाटका, गोवा, पूरा ये सी बीच निकला था. पूरा ओनली कोस्टल एरिया. हैदराबाद से निकला तुम्हारा पंढरपुर, पंढरपुर से कोल्हापुर, कोल्हापुर से अंबोली घाट, अंबोली घाट से रत्नागिरी, रत्नागिरी से गोवा, गोवा से फिर तुम्हारा ये क्या है मुंबई, कैसे नाम है कुछ जगह का, उसमें भी अच्छा सी बीच था. उसके बाद वहाँ से मैं निकला फिर तुम्हारा गोकर्णा, गोकर्णा से मुर्देश्वर, मुर्देश्वर से जो है उडुपी, उडुपी से फिर वापस आया कुर्ग, कुर्ग से बेंगलोर, बेंगलोर से वापस हैदराबाद. ऐसे हुआ. इसलिए मैं कल पे बोला चलो सोमनाथ चलते हैं बाय रोड, 10 मिनट पहुंच ही जाएंगे 3 दिन में घूमते. लेकिन कल पे बोलता मैं टिकट ले लिया. लेकिन तुम लोग क्वेश्चन कहाँ से नहीं दे रहे हो, खाली घूम रहे हो तुम मेरे साथ. कोई तो दो आंसर. सद्दाम तुम तो पढ़े हो. सर वो बफर स्टेटस रिपोर्ट भेजेगा ना. So segmentation will not happen, right? For RRC connection request. Yes. Who said? Thomas. Yes. Yes, Thomas. I'll come with you to Kerala. You've given the correct answer. Okay. Where are you staying in Kerala, Thomas? Actually, I'm staying in Bangalore, sir. My native is Kerala. Right now I'm staying in Bangalore only. ठीक है, नहीं आऊंगा तुम्हारे घर पे. इतना डर गया, पहले ही बोलता मैं केरला में नहीं रहता. No. केरला में से तुम्हारा घर कहाँ पे है? नहीं, जनरली क्या वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम. My house is at Idiki only, Munnar, near to Munnar only. So that area I know very well. Hill stations. That's the reason why I was telling during rainy season it is not good to go. Even especially that time when it was collapsed. That time I stayed in the Munnar. Okay, that is a bit dangerous. Too dangerous.
But when I entered only the tea garden completely. Huh? Yeah, that is very beautiful. November to February is the best time to come to Actually, Munnar. Munnar is fine, but no, main thing I liking the whole day when I was driving in the Kerala, na, when I was coming from the Munnar to go Guruvayur temple, na, that route having the so many scenery places. Yes. So that actually route I liked most. That was keep driving. You cannot believe it. Munnar I stayed what? Night I reached, stay in the hotel. Morning, we started from the Munnar to leave for Guruvayur temple. That's all. I didn't see anything in Munnar. Only I was keep driving to like the place. वहाँ बस लोग बोलते हैं कि हाथी रास्ता मतलब कि मुझे तो कहीं मिला ही नहीं हाथी रास्ते में लोग बोलते हैं कि there's because I also so many students from the Kerala so he said there are so many elephants tiger you will see on the road. See that is in Thekkady, that is not in Munnar, that is another place 100 kilometers away from Munnar, that is also a part of Idukki district only, so you have to go to Thekkady to see the wildlife. No, I don't want to see in the zoo and all these things there is a wildlife. It is not zoo. He said on the road only. No, it is not zoo. That's what they are right only. It is not zoo. It is a reserve forest. So on the way you can see. So on the way we can see. Yeah. Okay, चलो इस बार यही रास्ता जाएंगे. वो बोला कि सर बहुत सारे झुंड तो हाथी में रोड पे खड़े रहते बिल्कुल खड़े रहते हैं आपको. True, that's true only. He's from the your Kurnool or what's that one? Kannur. Near to Kozhikode he said. Yes. चलो आते हैं इस पर तुम्हें मिलते हैं थॉमस. No problem sir. So yes, Thomas' answer is correct. Actually, you forget Mohit here one concept and Rahul and Saddam तुम पे तो मुझे गुस्सा आ रहा है. रिवीजन तुम नहीं कर रहे हो इसलिए पढ़ के ऐसा कैसे आंसर दे दिया. What I said just now कि CCCH message is RRC connection request is CCCH message. And then I said CCCH message means RLC TM mode. RLC TM mode means what? It is not adding any header, any sequence number, कुछ भी add नहीं करेगा, segmentation भी नहीं करेगा. Because simple सा situation and suppose for example, now when the RRC connection request message will be received, suppose RLC TM mode. When RRC connection request message will come, this is CCSH message. So if this will be segmented in multiple PDUs, so for each segment sequence number to add करना पड़ेगा. This is first packet, this is second packet, this is third packet. So that when it will receive by the receiver will understand okay this 3 is the part of same PDU. But TM में तो sequence number add ही नहीं होता है. There is no addition of the sequence number. That is the reason there is no segmentation person performed. So entire RRC connection request message will be filled in the same PDU, no segmentation. RLC TM will ensure that all CCCH message, BCCH message, PCCH message must be filled in the same PDU because in RLC TM no sequence number will be added or no segmentation is performed. क्लियर है मोहित? यस सर. ऐसे में मोहित नागपुर आया हुआ हूँ. अच्छा. मैं एक बार बाय रोड बिहार गया था तो रूट वही था मेरा. नागपुर, जबलपुर, ओके. हाँ. ऐसे क्रॉस होते हुए फिर तुम्हारा वाराणसी से बिहार ऐसे रूट था. तभी तो मैं देखा था खाली ओनली डाइवर्जन और मेट्रो का काम चल रहा, हर जगह डाइवर्जन. सीमेंट रोड और मेट्रो दोनों साथ में. हाँ वो डाइवर्जन हर जगह सिर्फ डाइवर्जन ही था. So RLC TM will ensure that CCCH, BCCH and PCCH messages. कहाँ से साउंड आ रहा है? अंसारी. यस सर. मनमीत तो कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? नहीं सर वो थोड़ा आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. अच्छा इसलिए अनम्यूट कर दिया. ठीक. क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, म्यूट तो कर लो, तुम्हारा अनम्यूट हो चुका था.
मुझे लगा अंसारी बोल रहा सर आप हैदराबाद आओ, हैदराबाद को मैं घुमाता हूँ. RLC team will ensure that CCCH, BCCH and PCCH message will be transmitted in same video without segmentation. Now coming to the RLC UM, unacknowledged most. So TM तो ठीक है. Now UM and AM, it will perform all the tasks. मतलब सेगमेंटेशन भी होगा, बफर मेंटेनेंस भी होगा, RLC हेडर भी ऐड करेंगे, सीक्वेंस नंबर भी ऐड करेगा. दोनों मोड में ये सारे काम होंगे. ऑल दिस फंक्शनलिटी व्हाट आई एक्सप्लेन विल परफॉर्म इन बोथ द मोड. ओनली वन फंक्शनलिटी डिफरेंट. इन AM मोड retransmission will be performed EM में no retransmission. What is this actually? We'll see in detail. अभी मैं first एक overview दे रहा हूँ. Actually, EM RLC EM will be suitable for those services which is delay sensitive. मतलब जहाँ अपने को delay ज़्यादा नहीं चाहिए. There are so many services where we want the less delay, but it may cost your packet. Some packet may be missed. So it's suitable only for those services where reliability is not important. If some packet has lost, okay, no problem, but it should not create much delay. AM will be suitable for those services where reliability transmission should be performed in such a way that any packet should not be lost. If any packet is missing, then receiver must have some protocol through which it can recover those informations. So in AM mode, what will happen when sender means RLC transmitter will transmit some packet, so receiver will send the feedback in AM mode about that packet. Yes, we received that packet or that packet is missing. So if missing, तो sender फिर से retransmit करेगा. That is reason here delay will be created. AM mode में थोड़ा सा slow transmit because delay will be there. Why? Because you transmit the packet one, then feedback will come. If it is negative, again retransmit. So it will take some time. But in UM mode, no feedback. You transmit the packet to the receiver, again transmit the next packet. Sender will not wait for any feedback. We received or not received. So here there won't be any delay. But yes, if any packet lost, suppose packet 2 has missed, then it lost means lost. Why? Because receiver cannot send the feedback now. If receiver cannot send the feedback, then how sender will know if packet 2 has not received by the receiver? So then बोलोगे सर फिर the packet loss होगा तो इसका यूज क्या है? यूज है. There are so many services where if any information has lost, that is not important. Only delay should be very less. For example, your voice services. When you transmit the voice services, what will happen? It's a real-time services. During the real-time services, we don't want the retransmission protocol. Why? Because already I am there. If you couldn't listen my voice, you can say, Sarna, please repeat again. I will retransmit. There's no protocol required which miss the information and through the protocol will retransmit. But real-time service, what it should be have very less delay. Why? The time I'm speaking, you should listen at that time only. Chatting or mail में क्या होता है? If you're writing, it may take some time to transmit. But mail, chatting, what will happen? This is reliable transmission. No packet will lost. If you receive any mail, you will receive the complete mail. No, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप half mail receive किए हो. Why? Because that PS services transmitting based on the AM mode. You're chatting, mailing, browsing, the transmit based on the AM mode. So उसमें packet loss नहीं होंगे. Yes, due to the feedback some delay हो सकता है. But if you're in the
WhatsApp call, during the voice call, what will happen? This is real-time service. So there is no retransmission protocol. If any information lost, suppose you couldn't listen me some words, so there is no protocol who can retransmit that voice once again unless until I will speak once again. जब तक हम फिर से नहीं बोलेंगे वो वॉइस नहीं जाएगा. ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिस होगा तो जाएगा इन्फॉर्मेशन. और उसका यूज भी नहीं है ना, बिकॉज दिस इज रियल टाइम सर्विस. सपोज यू मिस सम साउंड, सम वर्ड्स नाउ, and after some time I am speaking some other words, and then that missing words will come. You cannot correlate. So that's why in EM mode it is suitable for those services where delay is not required. If some information is missing, it's fine. So RLC EM is transmitting or receiving only traffic information. No RRC message, no NAS message, means no signaling information will be transmitted by RLC EM mode. Means RLC EM is used to transmit or receive only traffic information, no signaling, no RRC message. So कोई भी RRC मैसेज देगा इंटरव्यू में, RLC EM तो आंसर नहीं होगा. अब TM और AM इसी दो के बीच में होगा, तो वो मैं TM किस में होगा वो मैं ट्रिक बताया, AM का भी ट्रिक बता दूंगा. So in RLC EM is not carrying any RRC message, it's only traffic information is transmitting, receiving only even those traffic which is delay sensitive, जहाँ पे आपको डिले कम चाहिए. सारा ट्रैफिक नहीं, मैं भी बताया कि ब्राउजिंग करोगे, चैटिंग करोगे, वो सब RLC EM में नहीं जाएगा, only voice services. So RLC EM is suitable for those traffic services which is delay sensitive. Some information may be lost in RLC EM mode. So RLC EM का यदि आप मैपिंग देखोगे, so it's transmitting only one channel, that is the DTC, dedicated traffic, because it's only transmitting the traffic channel. So in RLC AM it will operate only with the DTCH. Now coming to the RLC AM, I said whatever UM is performing, along with that only one functionality will be included, because your buffer maintenance, segmentation, concatenation, ये सब तो EM करता था, AM भी करेगा. What the new thing will come in AM mode? Retransmission. Based on the feedback, RLC AM can perform the retransmission. So RLC AM is providing reliable transmission. यदि कुछ information lost हो गया तो recover हो जाएगा. Reliable transmission, but it can create some delay due to the feedback and retransmission. But RLC AM may create some delay due to feedback by receiver
एंड रिट्रांसमिशन। रिट्रांसमिशन कब होगा? जब नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आएंगे, इफ नेग, एंड create some delay due to feedback and with feedback by the receiver and the retransmission by RLC transmitter. RLC AM ये दोनों ट्रांसमिट करेगा। ट्रैफिक, कौन सा ट्रैफिक? ऐसे ना, ओनली दोज टाइप ऑफ ट्रैफिक व्हिच नीड्स अ रिलायबल ट्रांसमिशन, बिकॉज ईएम में तो रिलायबल ट्रांसमिशन है नहीं। जैसे आप चैटिंग कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, मेल भेज रहे हो, तो इट नीड्स अ रिलायबल ट्रांसमिशन, पूरा का पूरा मेल सेंड होना चाहिए। सो फॉर दोज सर्व ट्रैफिक व्हिच नीड्स रिलायबल ट्रांसमिशन, RLC AM मोड यूज होगा। सो RLC AM कैन कैरी सिग्नलिंग एज वेल एज ट्रैफिक बोथ। RLC AM is carrying signaling as well as carrying both signaling as well as traffic information। अब सिग्नलिंग में तो तुम्हारा BCCH, CCCH, PCCH ऑलरेडी TM में ही चला गया था, बच्चा था क्या? DCCH। तो सिग्नलिंग में तुम्हारा ये DCCH पार्ट कैरी करेगा, नोट CCCH। CCCH तुम्हारा TM में जाएगा, PCCH TM में जाएगा। तो पूछा इंटरव्यू में, RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। सेटअप कंप्लीट तुम्हारा TCCH में आता है, मतलब RLC AM मोड में काम करेगा उस टाइम। द टाइम RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट विल ट्रांसमिट, एट दैट टाइम योर RLC विल ऑपरेट इन AM मोड। सो RLC AM is carrying your DCCH and DTCH. सो ये तो मैं बस बेसिक डिफरेंस बताया। अब हम लोग कल की क्लास में देखेंगे कि कैसे पैकेट का सेगमेंटेशन होता है, क्या कॉन्केटिनेशन है, और RLC PDU के हेडर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहते हैं, जब सेगमेंट होगा तो उसका लेंथ कैसे डिसाइड होगा, सेगमेंट होगा कहाँ पे, सारे हम लोग कल पैरामीटर्स देखेंगे। सो टुमारो विल मीट सेम टाइम। सर एक्सक्यूज मी, यस मोहित हियर। सर मुझे डाउट नहीं है, मुझे बस ये पूछना है आगे की टाइमलाइन। यानी अभी जैसे आपने बताया 5-6 लेक्चर्स में के बाद ये खत्म हाँ हाँ, तो हो मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अभी देखो क्या है, तुम्हारा 2 क्लास और लगेगा RLC का, ठीक है, 2 या 3 जितना मैं ले सकता हूँ। PDCP का हार्डली मुझे लगता है एक, थोड़ा सा नहीं तो सेकेंड क्लास का हाफ लगेगा, बिकॉज PDCP में फंक्शनैलिटी कुछ नहीं होता। PDCP का काम है सिर्फ कंप्रेशन का, तो तुम्हारा हायर लेयर्स का जो इन्फॉर्मेशन आता है, रोबस्ट हेडर कंप्रेशन का काम है, और साइफरिंग का काम है, साइफरिंग एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन। तो मेरे से 2 फंक्शनैलिटी 1 घंटा काफ़ी है। वो लगेगा क्लास, फिर CSF भी होगा, फिर IRAT हैंडओवर होंगे। दोनों के लिए 1-1 क्लास काफ़ी है। CSF में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 क्लास नहीं लगेगा, क्योंकि CSF भी का तुम्हारा 60% टॉपिक तो तुम्हारा अटैच से ही मिलता रहेगा। अच्छा। वो CSF चाहिए तुम्हारा क्या, पहले अटैच में तुम्हें कंबाइंड EPS IMS अटैच करना पड़ेगा। यदि वॉइस कॉल करना है तो अटैच टाइम में कंबाइंड EPS IMS अटैच रहेगा। फिर उसके जो वॉइस प्रेफरेंस सेटिंग थे, याद है, CSF ओनली IMS मैं अटैच में बताया था, तो वही सब फिर से रिपीट होगा। ज़्यादा कुछ न्यू नहीं, मतलब हाफ आवर उसमें लगेगा। फिर IRAT हैंडओवर, मतलब 1 से 2 क्लास में तुम्हारा CSF भी IRAT हैंडओवर होगा। अच्छा, फिर तुम्हारा LT पूरा हो गया, सारे लेयर्स मैं क्लियर पढ़ा, तो यहाँ पढ़ाया हूँ नहीं इस बैच में ना? हाँ पढ़ा है। हाँ, तो हो गया सारा। सर तो मुझको उसका फिर जानना VOLT स्टार्ट। जो टूल्स वगैरह जो रहेंगे वो इसके बाद हाँ नहीं, स्टार्ट। उसके बाद उसको तुम्हारा बचा जो VOLT के बाद ना, VOLT रखो तुम्हारा IMS के लिए 3 से 4 क्लास लगेगा। उसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा स्पेसिफिकेशंस टूल्स प्रोजेक्ट, तो वो रखो तुम्हारे 9 से 10 क्लास रहेंगे। मतलब मैं पता है टेक्नोलॉजी तुम्हारा खत्म होने का, नॉट फॉर प्रोजेक्ट। हाँ सर, तो ये वो टूल्स भी आप ही करेंगे, लेंगे? हाँ, मैं ही करूँगा ऑब्वियसली। ओके, तुम्हारा टूल्स, प्रोजेक्ट, रिज्यूमे, ये सब मैं ही करूँगा। ओके सर। मतलब तुम्हें मैक्सिमम जो है अभी
12-13 क्लास में हो जाएगा पूरा टूल्स प्लस टेक्नोलॉजी मिला करके। अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो जब हम टूल्स करेंगे उसी टाइम तुम्हारा स्पेसिफिकेशंस आएगा, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सारे टूल्स पढ़ाएंगे। ओके सर। और QPST कैसे कैसे काम करेगा, QPST में ही काफ़ी सारे टूल्स हैं तुम्हारा, QPST कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर डाउनलोड, सर्विस प्रोग्रामिंग, उसमें है काफ़ी सारे टूल्स हैं। फिर QXTM, फिर 3GPP मैसेज एनालाइजर। ओके ये सब करने के बाद फिर हम लोग बताएंगे रिज्यूम में तुम्हें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। लेकिन टूल्स के पहले इंटरव्यू तो कंपलसरी होगी। अच्छा, यानी आप जो मॉक इंटरव्यूज लेंगे वो करेक्ट, नहीं तो फिर क्या उसके लोग पहले। टूल्स समझ में नहीं आएगा। हाँ हाँ नहीं तो बस एक मैसेज मुझे ग्रुप में डाल देना कि सर ने आप टूल्स ले लो, रिवीजन मेरा काम है, मैं हाँ कर लूँगा, ताकि कल वो लोग मुझे ना ब्लेम डालें। इसके तो लोग हाँ। पढ़ते थे नहीं, लास्ट में मेरे को ब्लेम डालते हैं। हम्म। मुझे तो लेना ही लेना ऑब्वियसली। हाँ हाँ तो या तो आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं रिवीजन करोगे तो बस मैं मुझे ग्रुप में मैसेज डाल देना, मैं कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन नहीं करोगे तो मैं टूल्स क्लास नहीं लूँगा, मैं लूँगा, बस खाली ग्रुप में मैसेज डाल देना सब कि हाँ सर मेरा रिवीजन नहीं है, किसी वजह से जॉब है या जो भी है, आप सब कंटिन्यू कर दो क्लास। ओके। Sir, any tools are available for trial basis, sir? Just for some practice or है something? रहेगा। मैं आपको जो सबसे डिफिकल्ट टूल्स है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, जो सबसे डिफिकल्ट है, ओके तो जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें स्पेसिफिकेशन से मैसेज को डिकोड करना होता है ना, तो आपको मैं ऑनलाइन दे दूंगा, अवेलेबल है। Okay. Okay, sir. तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि हेलो सर। हाँ सर यानी फेब के एंड मैक्सिमम पकड़ भी लिया तब तक के हो जाए ऐसा। फैब के इंट कहाँ जा रहे हो? हाँ, ज़्यादा बोल दिया मैंने 15 क्लासेज, मतलब 15 क्लास में मैक्सिमम था 15 क्लासेज। हाँ हाँ ओके। यदि रिवीजन किए ना तो 15 क्लासेस से 16 क्लास में नहीं, रिवीजन किए, रिवीजन नहीं करता लोग तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। नहीं सही है। लेकिन रिवीजन मैं इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम लेके बता रहा हूँ, ठीक है ओके। इतना होगा। आप गार्ड बैंड लेके चल रहे हो। इसलिए जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक था जनरली मैं पहले ही खत्म करता हूँ, जैसे तुम्हारा मैक लेयर है, नए CRC, बाकी ये सब अभी पता है। PTC तुम देखो, PTC तुम स्पेक्स डाउनलोड करो ना, PTC पे करना है 22 पेज का तो स्पेसिफिकेशन है जो स्टैंडर्ड होता है, ओके उसका टास्क ही नहीं है PTC पे का। सर ठीक। बस तुम्हारा IMS थोड़ा 3 क्लास लगेगा, बस एक लेंदी टॉपिक का भी 3-4 क्लास का बस वही बचा हुआ है, और RLC जो 3-4 क्लास लेगा, और IMS। और फिर टूल्स में तो बहुत सारे हैं, इसलिए तुम्हारा 8-10 क्लास ले रहा है, इससे कुछ लेंदी नहीं, उसमें बहुत सारे टूल्स पर रहेंगे, इसलिए हम लोग 8-10 क्लास लगेगा। ओके ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू गुड बाय बोलो। यस सर। नागपुर में तुम अच्छा जगह ढूंढ लो, जंगल कहाँ पे तो मुझे बताना। यहाँ सर ताड़ोबा है ना सर। नहीं मुझे केरला टाइप का जंगल चाहिए, वो सब जंगल में कुछ नहीं था। वैसा नहीं क्या, वहाँ से तो नहीं मिलेगा। मैं एक बार गया था यहाँ पे, सुने थे आदिलाबाद में कोई वाटरफॉल्स है, क्या गया था, क्या वाटरफॉल था, लगता है कि कुत्ता को थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ा दिया, वहाँ से पेशाब कर रहा है। वाटरफॉल देखना चाहते हो तुम केरला में देखो, मैं मतलब पूरे रोड में ना लगातार कंटिन्यूसली तुम्हें बाय रोड जर्नी, मतलब कोई ऐसा उसको वाटरफॉल का नाम नहीं है, कितने जो वाटरफॉल फेमस हो तो काफी डीप रहते हैं, जिसका नाम इन रोड पे चलते रहोगे ना, तुम्हें हर जगह पहाड़ से पूरा वो पानी सा गिरता रहता है, इतने मतलब सीन भी रहते हैं। बट जाओ रेनिंग में, अगस्त में जैसा मैं गया था, जिंदगी को अपने हाथ में लेकर चलो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, मरने के बाद फैमिली को कुछ मिल जाए, फिर निकल जाओ। नहीं सर, थॉमस संभाल लेंगे अपन लोग को। थॉमस संभालेगा क्या, मरने के बाद डेड बॉडी घर पहुंचवाएगा, उसको क्या करेगा बेचारा। डेड बॉडी भी नहीं मिलेगा। वो भी बोला थॉमस नहीं मिलेगा, बोला मतलब कर रहा कि इनडायरेक्टली ढूंढने का ट्राई भी नहीं करूंगा। कल्पेश क्या चल रहा है, कल्पेश क्या ठीक है, डेड बॉडी मिल जाता है। चलो मिलते हैं। ठीक है सर। हाँ सर।